اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کل ہم نے صرف کے جو ہفت اقسام تھی وہ کی تھی، تو آج میں وعدہ کے موافق آپ کو ان کی تعلیلات کرواؤں گا۔ جی، سب حاضر ہیں انشاءاللہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آخری پارے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، عما یتساءلون، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے صرف کے اعتبار سے حل کرنا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے۔ دیکھیں، فعل کو ہم نے لینا ہے زیادہ، کیونکہ صرف کا زیادہ تر وہ مطلب فوکس جو ہے نا وہ افعال پر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یتساءلون، یتفاعلون، بربط۔ فا کے مقابلے میں سین ہے، عین کے مقابلے میں حمزہ ہے، لام کے مقابلے میں لام۔ سأل مادہ اس، تو یہ محموز العین ہوا۔ اور چونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صحیح میں اور محموز میں جی زیادہ تعلیلات نہیں ہوتی، اس لیے یہ اصل پر ہے، یتزاربون، یتناصرون۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، مختلفون، یہ اس میں فاعل ہے، مختلفون، اس کا وزن کیا ہوگا؟ مفتعلون۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، مفتعلون، فا کے مقابلے میں خا ہے، اور جی عین کے مقابلے میں لام ہے، اور لام کے مقابلے میں فا ہے۔ تو مادے کو نکالیں، الگ سے الگ کریں، خا لام فا، خلفا۔ تو اب خا لام فا کیا ہے جی؟ 16 قسموں میں سے کیا ہے؟ وہ ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ اب میں آپ سے پوچھتا رہوں گا تاکہ آپ کی جو موجود ہیں وہ ساتھ ساتھ میسج کا بھی سامنے رکھے کہ فوراً جواب دیتی رہے۔ جی آگے چلیں، سیعلمون، سیعلمون۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اس میں عین، لام، فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں کون کون سے حروف ہیں؟ کوئی ایک بہن بتلا دیں لکھ کر۔ جی، عین لام میم، جی دیکھیں، اب عین لام میم جو ہے یہ کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، نہ عین لام میم میں سے کوئی حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں، یہ صحیح ہوگا۔ اچھا جی آگے چلیں، لم نجعل، نجعل، جی اس کے ان کو بتلائیں جی۔ جی، لم نجعل، جیم عین لام، ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، اور چونکہ تو کوئی رد و بدل بھی نہیں ہے تو اس لیے اس میں تعلیل بھی نہیں ہوگی۔ یہ صیغہ ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ صیغہ جو ہے اپنی اصل پر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی آگے، خلقنا، خلقنا، جی اس میں مادہ کیا؟ خا لام قاف، تو یہ صیغہ کی اپنی اصل پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور صحیح ہے یہ، اجے وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وبنینا۔ اب دیکھیں بنینا، جی کوئی بہن بتلائیں گی؟ یہ بنینا، با نون یا، اب یہ حد تک سامنے سے کیا ہوگا؟ جی ناقص، کیوں کہ با نون یا، لام کے مقابلے میں یا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ناقص سے ہی آئی، تو اب یہ کیا ہے جی؟ اب لیکن اب اس میں تعلیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟
तो हम सही का सीगा देखेंगे तो सही का सीगा भी सेम यही आता है, बनैना, जी जी ज़रबना, यानी पहले दो पर फतह आता है, तीसरा साकिन आता है, उसके मुकाबले इसमें भी हम ये कहेंगे ये सीगा अपनी असल पर है, अगरचे नाकिस है लेकिन ये अपनी असल पर। समझ में आ रही बात जी? अच्छा, ये आगे चले। अनजलना, अनजलना, कोशिश करें तमाम बहनें साथ जवाब में लिखकर जरूर भेजें ताकि सबके साथ यानी सबका इजरा हो। नून जालाम, ये जो बहन ने भेजा है फातिमा ने, हमजा नून जालाम, ये ठीक नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उर्फ असली तीन होंगे, तीन, नून जालाम, ठीक है। अफ़अलना, फा के मुकाबले में नून है, आइन के मुकाबले में जा है, लाम के मुकाबले में लाम है। ये क्या हो गया, ये सिर्फ अपनी असल पर होगी, सही होगी जी। मिनल मुअस्सिराती, अब देखिए जब हमने सिगा करना है तो हमने हुरूफ जायद हटा देने, अलिफ लाम हटा देने, मुअस्सिरातुन, मुअस्सिरातुन, जी। मुफ़इलातुन, अब इसका मादा क्या है जी? जी इसका मादा क्या है जी? आइन तानिए बहन, मुअस्सिरात, स्वाद स्वाद, आइन स्वादरा, हाँ ये ठीक, आइन स्वादरा, तो ये क्या है, सिगा अपनी असल पर है, क्यों? सही है अपनी असल पर जी। मीकाता, मीकातुन, ठीक है। अच्छा, काना भी है, काना, जी काना। अब ये क्या है, देखिए जहां पे अलिफ आएगा, मैंने आपको बतलाया था कि अलिफ तो चूंकि, जी जी, अलिफ चूंकि क्या होता है, वाव या या से बदल, वाव या या, असल में ही वाव या होता है, बदल कर आता है। तो अब ये देखिए हम वाव को लगाएं तो कबाना, ठीक है, ये क्या होगा जी? मादा काफ वाव नून, हफ्त अक्सा में से क्या होगा जी? जी बहने माइक म्यूट रखें, काफ वाव नून, ये अल्लाह तेरे शुक्र है, अल्लाह तेरे शुक्र है, अल्लाह तेरे शुक्र है, अल्लाह तेरे शुक्र। जी बात समझ में आ गई, अजवब ठीक हो गया, ये अजवब हो गया, ये क्या, काफ वाव नून, काना, ठीक है। अच्छा आगे चले। अब इसमें इसमें मैंने आपको बताया था कल वाला कानून, कौन सा कानून लग गया, काला वाला, वाह मुतहरिक है माकबल मफ्तू है, तो काला वाला कानून लगा, तो क्या हो गया जी? वाह मुतहरिक माकबल मफ्तू, वाह को अलिफ से बदल दिया तो क्या हो गया, काना। समझ में आ रही बात जी? अच्छा, मी खातून, मी खातून असल में क्या था, कोई बहन बतलाएंगी असल में? म्यूकात, ठीक हो गया जी। अब देखिए मैंने आपको बतलाया था, अब ये म्यू, मिफआलुन, म्यूकात मिफआल, ठीक है। अब ये क्या हो गया जी? तो अब ये क्या हो गया जी? इसमें वो आला का सीगा है, इसमें जर्ब का, और फा के मुकाबले में वाव, तो ये मिसाल बाबी हुआ। मैंने कल आपको कानून बताया था, कौन सा जी? मियादुन वाला, कि वाव साकिन हो माकबल मकसूर हो तो वाव को या से बदल देती है। तो अब इसमें वही मिसाल वाला कानून लग रहा है, तो वाव को या से बदल दिया तो क्या हो गया, मीकात, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। यौम युनफखु, युनफखु, जी युनफखु, इसका वजन क्या होगा जी, कोई बहन बतलाएंगी वजन? जी जहां पर है उसी में जी, उसी पर इसका वजन लेके आना, युफ फालू वजन बनेगा, ठीक है। इसका मादा क्या होगा, नून फाखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सही है और अपनी असल पर है। अच्छा, तूना, तूना, जी इसका मादा क्या होगा, हमजा का आया, जी बहुत अच्छा। तो अब देखिए, अब लेकिन अब जब हम इसको सीगा को देख रहे हैं तो ये सीगा असल पर नहीं है, तालील होकर आ रहा है, क्यों? इसलिए कि अब ये मुजारे का सीगा है, तो मुजारे में देखिए जी,
ताती तातियानी तातियूना आना चाहिए था, तजरिब तजरिबानी तजरिबूना, ठीक है। ताती तातियानी तातियूना आना चाहिए था, लेकिन ये तातूना है। तो मैंने आपको बतलाया था कि जहां पे नाकिस आएगा वहां पे यदु तद वाला कानून बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर तातियूना, या मजमूम है, माकबल मकसूर है, और माबाद, जी जी तातियूना और माबाद या मद्दा है जी। वाव मजमूम है, माकबल मकसूर है, यहाँ या मजमूम है, माकबल मकसूर, माबाद वाव मद्दा है। तो अब इस या के हरकत करके माकबल को देना, ठीक है। अब जब या का जम्मा माकबल ता को दिया तो माकबल ता मजमूम हो गया, तो ता तुयना हो गया, ठीक है। फिर या साकिन माकबल मजमूम, यूसर वाला कानून लगेंगे, तो वाव को वाव से बदल जाएगा, ठीक है। तो ता तू ना हो जाएगा, दो वाव हो जाएंगे तो इल्तिका साकिन है, एक वाव को गिरा देंगे तो ता तू ना। समझ में आ रही बात जी? थोड़ी सी तारीफ समझ में आ रही? जी, जब मैंने जैसे मैंने आपको कल बतलाया था कि जो खबरें मैंने आपको बतला दी, ज्यादातर यही कानून जो है हमारे सीखों के अंदर लगते हैं। लेकिन अब थोड़ा सी हम इजरा करवा रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि कोई मुश्किल चीज नहीं। अब देखिए तातीयूना, हमने हमें जब मादे का पता चल गया तो हमें असल यानी सही के वजन पर उस सीगे को लेके जाना कोई मुश्किल चीज नहीं। जब हम सही के वजन पर सीगे को लेके जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा हमने वाव को की हरकत नकल करके इस हालत में लेके आना है, हमने वाव की हरकत को गिरा कर लेके आना है। ये हमें क्या पता चल जाएगा, मादा जब पता चल जाए तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए सुयरत, फेल के आखिर में कसरा नहीं आता, याद रखिएगा। लेकिन सुयरतिल जिबाल आगे से मिलाने के लिए आ सकता है। समझ नहीं बात को? आगे से मिलाने के लिए सुयरतिल जिबाल। मुझे बात समझ में आ गई थी सबको? जी। अब देखिए ये क्या सुयरत, इसके बारे में बताएं, इसका मादा क्या होगा? सुयरत का मादा क्या होगा जी? ये जी लिख कर बताएं, सीन या रा। अब जब सीन या रा है तो ये क्या हो गया? अजवफ हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है? जी मजहूल है और अपने असल पर है। अलबत्ता मजीद का बनेगा सुयरा, जी बुजिया। ठीक हो गया जी। आगे चल, लित्तागीना, जी लित्तागीना, ठीक है। अब देखिए अत्तागीना, ये हालत जर्री, और जब हमने सीगा निकालना होता है तो हमारे तरफी में ले आते हैं ताकि आसानी से रहे। तागूना, तागूना। अब देखिए तागूना ये इसमें फाइल है, लेकिन अब इसमें फाइल में हमने पढ़ा हुआ था मुजर्रद में जारिबुन जारिबानी जारिबूना। अब जारिबूना और तागूना में बड़ा फर्क है। ये फर्क ही हमें बतला रहा है कि यहाँ पे तालील हुई है, दर्द बदल हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या तलाश किया इसका मादा। अब मादा आपने देख लिया तागीन या जवाब नहीं है, नाकिस हो गया तागीन या वाव दोनों में से कर लो, ठीक है। अच्छा तागीन या। अब जब हमने मादा निकाल लिया तो हमने असल निकाल ली है ताकि फाइन लाम के मुकाबले में क्या आ जाए, हरफ इल्लत वो जो है फाइन फा के मुकाबले में तो आए, गईन के मुकाबले में आइन के मुकाबले में गईन आए, और लाम के मुकाबले में या आ जाए उस अंदाज से, और इसमें फाइल का वजन भी आ जाए। तो तागियूना, तागियूना, ठीक है। अब या मजमूम माकबल मकसूर मा बाद वाव मत्ता, या की नकल हरकत नकल कर दी वही, तो तागीना हो गया। या साकिन माकबल मजमूम, या को वाव से बदल दिया तो आगूना हो गया। दो वाव जमा हो गए, एक को हजफ कर दिए तो तागूना हो गया। समझ में आ रही बात जी? जी भाई सब कुछ हल हो रहा है आपके यहाँ? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ला यजूकूना,
ला यजूकूना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ला यजूकूना, ला यकूलूना, हम क्यों, ठीक है। तो ला यकूलूना क्या था, अजवफ था, तो ये भी क्या होगा, अजवफ होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मादा काफ वाओ जाल वाओ काफ, जोको शौक पढ़ते हैं, जोको शौक, जी, जाल वाओ काफ। अब अजवफ में हमने क्या बतलाया था, मुजारे में आमतौर पे वो यकुल तकुल का कानून लगता है। अब इसकी असल निकालें, ला यज़ूकूना की असल होगी ला यज़वुकूना, ला यज़वुकूना। अब वाव मुतहर्रिक माकबल हरफ सही साकिन, मैंने आपको बतलाया था वाव मुतहर्रिक माकबल पता हो तो काला वाला लग जाता है, वाव और या मुतहर्रिक हो, और वाव और या मुतहर्रिक माकबल साकिन हो तो क्या लग, कौन सा लग जाता है, इल्तिकाए वो यकुल तकुल लग जाता है। यकुल तकुल वाले कानून के तहत हमने क्या किया, वाव का जम्मा नकल करके जाल को दिया। अब वाव का पर जो हरकत थी पहले वो जम्मा थी, और जम्मा वाव के मुआफिक होती है, इसलिए वाव को इसी तरह रहने दिया, ला यजूकूना हो गया। तो इस तरह समझ में भी आ रहा है या मजीद आपको लिखकर समझाऊं। तो मैंने कहा कुरान पेपर खुला रहेगा तो एक तरफ तवज्जो से आपको जुबानी हल करके आप थोड़ा बहुत साथ साथ लिखते रहेंगी, क्या ख्याल है, ताकि आप लोग भी सब कोशिश करें, सब जो भी हाजिर है ना वो सब जवाब देने की कोशिश करें, ताकि गलती होगी तो मैं दुरुस्त की कर दूंगा इंशाल्लाह, गलती होगी तो दुरुस्त की कर देंगे। ये क्लास है, देखिए क्लास में सीखने जिसे कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि भाई जो बंदा जो जी सीखने के जमाने में अपने आप को जी जी ये नहीं समझता कि मेरी बेइज्जती होगी, बल्कि सीखने की कोशिश करता है, तो उसको आ जाती है। और जो सीखने के जमाने में कहता है जी मैं बताऊं या मैं समझूं मैं याद करूं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो वो फिर नहीं सीख पाते। इसलिए अब आपको सीखने का वक्त है, देखिए आप गोया कि समझ लीजिए आप एक क्लास में बैठी हैं, हम आपको और हम खुद भी सीखने वाले, देखिए हम तो कामिल नहीं है, कामिल होने का कोई दावा भी नहीं कर सकता। हाँ ये है कि थोड़ा सा आपसे ज्यादा थोड़ा बहुत याद होगा, बस वो आपको दोहराई करवाएं, बस इतना फर्क। मेरी बात समझ में आ रही है सबको जी। तो इसलिए इससे परेशान ना हो, बिल्कुल अलबत्ता सीखने की जरूर कोशिश करें हर एक, जी है ना, नेकी में तो आगे बढ़ना है, नेकी में तो आगे बढ़ना है ताकि आगे बढ़े। हाँ भाई मैं बताती हूँ क्यों, ताकि ज्यादा आ जाए, अच्छे तरीके से आ जाए। जो गलती है देखिए, एक जो आमतौर पे जो रोड पे चल रहा होता है हादसा उसी के साथ पेश आता है। एक बंदा घर में बैठा है, हमें खबर मिले जी वो जो है ना मोटरसाइकिल में लग गया या बड़े ट्रक में लग गया, तो हम खबर को सही सब समझेंगे जी। हम इस खबर को सही समझेंगे कि एक बंदा घर में बैठे हैं उसको हादसा हादसा पेश आ गया, भाई घर में बैठने वाले को हादसा पेश नहीं आता, गाड़ी में वो रोड पर चलने वाले को हादसा पेश आता है। तो इसी तरह आप सीखना चाह रही हैं तो भाई गलती आपसे ही होगी ना। एक हमारे सारे मोहतरम है सैयद मुफ्ती हसन साहब दाम तो बरकातुहू आलिया, बड़े खूबसूरत मिसाल दी। तो एक साहब ने कहा कि भाई मदरसे में जो तालिब इल्म आ रहे हैं ये शरारतें बहुत करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये है फला है फला है। तो हजरत उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे कि भाई बात ये है कि वर्कशॉप में वो गाड़ी आती है जो ठीक होने वाली हो, जो गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर हो वो तो शोरूम में होती है। समझ नहीं बात को जी। इसलिए सीखने के लिए आए ना, तो सीखने के उसमें कोशिश करें जितना आ जाए, जितना कोशिश होगी अच्छा। खैर आगे चलते, कानू ला यरजूना, ला यरजूना, अब देखिए ला यरजूना, अब ये फेल मुजारे का सीगा नून आ रहा है तो इसके मतलब है कि फेल मुजारे, नून गिर जाए तो नहीं का बन जाता है। चल ला यरजूना, अब हमने मुजारे का जो वजन पड़ा है उसमें अल्फाज ज्यादा आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ला यजरिबूना, ये ला यखलुकूना, ला यस्माऊना, तो ये तो उससे कमी बेशी हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें तालील हो रही है। अब सबसे पहले हम इसका मादा तलाश करेंगे, तो मादा क्या है इसका, राजिम आइन नहीं, राजिम या, अच्छा नहीं राजिम या वाव होगा, ठीक है, आइन नहीं होगा। आइन होता तो आता ना जी, फिर तो सही होता ना। तो अब ये नाकिस है, तो नाकिस में तालील हो रही होती, तो हम अब हमने जब हमने मादा तलाश किया राजिम या, तो अब हम इसके असल उसके मुआफिक निकालेंगे सही के वजन पर, ला यरजूना या ला यरजियूना, ठीक है। ला यरजूना के वजन पर जो नाकिस में मुजारे आएगा
تو وہ جو ہے نا اس پہ کسرہ آ رہا ہوگا، یعنی کہ اس کا ان کلمہ لا یرجیون. اب یہی تعلیل ہو جائے گی، یا کا حرکت نقل کر کے جیم کو دی، ٹھیک ہے، اور یا کو ضمہ سے واو سے بدل دیا، کیونکہ پیچھے جیم پر ضمہ تھا، اب دو واو ہو گئے، ایک واو کو حذف کر دیا تو لا یرجون ہو. جب تک ہم مادہ نہیں تلاش کریں گے نا تو ہمیں صیغے کی پہچان، مادہ وزن ضرور دیکھیں. اب جو کمی بیشی ہو رہی ہوتی ہے جب آپ بار بار کریں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا یہاں پہ کیا کمی بیشی ہو رہی ہے. یہاں پہ عین کلمے میں حذف ہو رہا ہے، یا عین کلمے میں تعلیل ہو رہی ہے، لام میں ہو رہی ہے، فا میں ہو رہی ہے، کس میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں کذبو، کذبو، اب یہ کہ صحیح کا صیغہ ہے، کیوں؟ اس کا مطلب کہ کاف دال با، تشدید وہ فعل کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے باب تکفیل سے ماضی کا صیغہ ہوگا اور یہ صحیح ہوگا. ایسے ہی ہے جی. اچھا باقی دیکھیں زو جی، احصینا، 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 ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ احصا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مادہ صادیا، صادیا، یہ کیا ہو گیا؟ ماضی کا صیغہ باب افعال، باب افعال ماضی کا صیغہ. تو اب یہ اصل پر ہے، کیوں؟ اکرمنا، احصینا، ایک کی طرح. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے جی. اچھا آگے چلے، ذوقو، ذوقو، اب دیکھیں لفظ مختصر، ذوقا، ذوقو. اب یہ ہمیں کیا ہوگا؟ اب ہم نے سیکھنے کی تعلیم کی ہوگی، مطلب یہ امر ہے، اور امر بھی اجوف سے، ٹھیک ہے. قل قولا قولو، ذوق ذوقا ذوقو، اور اب ہم نے اس کا مادہ کیا ہم نے پیچھے پڑھ لیا، لا یذوقونا، ذال باو قاف. اب ہم اس کی اصل نکالیں گے امر کے وزن پر لا کر، اذوقو، افعلو، اذوقو، افعلو، ذال باو قاف، ٹھیک ہے. واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، ٹھیک ہے، اذوقو ہو گیا. اب حمزہ جو تھا ما قبل متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا، ذوقو ہو گیا. آسان ہے جی. جی تعلیل آسان ہے مشکل ہے؟ کسی کو سمجھ میں نہ آئی تو ضرور بتاتے رہیں تاکہ ہم اس کو مزید حل کر. حمزہ دیکھیں، حمزہ اصل میں جو امر کے اندر دو قسم کے حمزہ آتے ہیں، انہوں نے اچھا سوال کیا. ایک حمزہ وہ ہوتا ہے جو جی حمزہ، حمزہ اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں حمزہ بسلی اور قطعی والا قانون آپ نے پڑھا ہوگا. دو قسم کے حمزہ ہوتے ہیں، حمزہ بسلی اور حمزہ قطعی. حمزہ قطعی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں گرتا. اب وہ کہاں کہاں پہ ہوتا ہے؟ یا صرف العزیز میں 9واں 10واں قانون ہے حمزہ بسلی اور قطعی والا. تو 9 قسم کے حمزہ کیا ہوتے ہیں؟ قطعی ہوتے ہیں. افعال میں باب افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. اچھا، اور حمزہ بسلی جو ہوتا ہے نا وہ ضرورت کے تحت لایا جاتا ہے، اور جب ضرورت نہ ہو تو گر جاتا ہے. حمزہ بسلی ضرورت کے تحت لایا جاتا ہے، اور ضرورت نہ ہو تو وہ گر جاتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ عربی زبان میں کسی بھی لفظ کو ساکن پہلے لفظ کو پڑھنا مشکل، یعنی پہلے لفظ ساکن اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، پہلے لفظ پر حرکت ہونا ضروری ہے. اب امر میں جب پہلے لفظ ساکن ہوتا ہے اس لیے اس سے پہلے حمزہ لے کر آتے ہیں تاکہ اس کلمے کو پڑھا جا سکے. جیسے اضرب ہے نا، اب حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ صرف ضاد کے ساکن ہونے کی وجہ سے لایا گیا، اس لیے لا یضرب میں وہ گر جاتا ہے، آٹومیٹک گر جاتا ہے. سمجھ رہی بات کو جی؟ اب یہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ اذوقو امر تھا، حمزہ تھا، لیکن اس وجہ سے تھا کہ ذال ساکن ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟
اب जब क्या हो गया जी, जी अब जब हमने जाल को हरकत दे दी तो मुंतकिब हुआ। इसे कहते हैं हमजा माबाद मुतहरिक होने की वजह से गिरता है। ठीक हो गया। समझ में आ गई बात। अच्छा, इन्न लिल मुत्तकी, अच्छा आगे लन नजीदा, नजीदा। अब इसको आप लन, हरफ लन भी आता है शुरू में, तो अब इसको हटा कर नजीदु पढ़ ले, नजीदु। नजीदु क्या है जी, असल में नजविदु अजवफ है। ठीक है, या न ज्यादा यजीदु, नजीदु भी हो सकता है, नबयु। ठीक है, या की हरकत नकल करके माकबल को दी। ठीक है, और जो है चूंकि या पर कसरा था और उसी के माफी की जो है या ही आती, इसलिए उसको उसी तरह रहने दिया, तो नजीदु हो गया। समझ में आ गई बात। उसे के मुआफिक रहने दिया। अलिफ नहीं आता, अलिफ हुर्फ असली नहीं होता बहन, वाव ये या हुर्फ असली। अलिफ जो है ना, यानी कि फाइल के मुकाबले में अलिफ नहीं आता, अलिफ जहां पर भी आएगा वो तब्दील होकर आएगा। हुरूफ इल्लत दो ही यहाँ पे आते हैं, वाव या, वाव या। वाव को कर लें तो नजविदु। ठीक है, वाव के नकल करके माकबल को दी। ठीक है, और चूंकि अब कसरा है तो वाव कसरा के मुआफिक वाव को यहाँ से बदल दिया। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर एक चीज है, अगला लफ्ज जो है वो जरा मुत्तकीना, क्योंकि तकवा वैसे भी मुश्किल है तो इस लफ्ज की तालील भी थोड़ी सी लंबी होती है। इसमें मादे को तलाश करना हमें तालील तालील की बुनियाद पे होता है, लेकिन जिन्होंने किया हुआ उनको आ रहा है वाव काफिया। अब देखिए यहाँ पे वाव तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे वाव नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो वाव काफिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तालील करते हैं, तालील की वजह से वाव ता से बदल जाती है। इतना तखलील वाला कानून है सूरह अजीज में, आप देख सकती हैं, तो वाव ता से बदल जाती है। ठीक है, बाब इफ्तिआल के फाकिल मुकाबले में वाव आए तो वाव को ता से बदल दिया, ता के ताम इदगाम कर दिया। ठीक है, अब मुत्तकिन, मुत्तकीयुन, मुत्तकून आप कर ले, मुत्तकीयून, आखिर में वही तालील हो रही है जो हमने पहले की थी। चूंकि इसका मादा क्या है, ये लफीफ है। लफीफ क्या होती है कि जिसके हरूफ असली के दो हरूफ असली में से दो हरूफ में हरफ इल्लत आए। ठीक है, अब वो हरफ इल्लत आ गया, वाव को तो हमने बदल दिया जो इजाफी थी। अब आगे आखिर से काफ के हमने आखिर में की तालीलात की, मुत्तकीयून था, या के नकल करके माकबल को दी, तो या को बरहाल छोड़ दिया। ठीक है, तो मुत्तकीना हो गया। और फिर क्या हो गया, एक दो या जमा हो गई, एक को गिरा दिया तो मुत्तकीना हो गया। जैसे वहां पर तागुना में दो वाव गिरा रहे, ऐसे यहाँ पे दो या गिरा रहे। ठीक है, दोबारा मैं करवा देता हूँ, मुत्तकून असल में मुत्तकी। देखिए मैं लिख कर भेज देता हूँ आपको। जी, ये लिखना जरा मुश्किल होगा, बहरहाल आप ज़हन नशीन कर लीजिए, मुतकीयूना। ठीक है, मु, मीम वाव ता काफ या वाव नून। ठीक है, तो या की हरकत नकल करके माकबल को दी, मुतकीयूना, मुतकीना हो गया। फिर या का के माकबल जम्मा, इसलिए या को वाव से बदल दिया, मुतकूना हो गया। फिर दो वाव में से एक वजब कर दिया था, मुतकूना हो गया। ये आखिर से हो गई जो पहली हम तालीलात थी। तो इब्तदाई में वाव को ता से बदल रहे इत्तखद वाले कानून के तहत, कि बाब इफ्ताल के फाकिल में के मुकाबले में जब वाव या में से कोई आ जाए तो उसको ता से बदल देते हैं, तो मुतकूना हो। समझ में आ रही बात जी।
ये मैं वैसे जो है ग्रुप में लिखकर भेज दूंगा, क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर हो रही है तो ये फिर हट जाएगी। ठीक हो गया? तो ये बात जहनशीन कर लीजिए, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जी, तो अब देखिए, अभी हमने एक एक सफा किया, मैंने इस सफे के लिए कोई तैयारी नहीं की कि भाई मैंने अलग से वो किया हो कि भाई पहले मैं देखूं कौन कौन सा सिगा आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि पता नहीं चले क्यों। उसकी वजह ये कि ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने एक दफा हल कर लिया ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए कि रिलैक्स होकर आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन सीखों की तालीम को पहचानना, हाँ गर्दानों को याद करना है, वो पीर वाले दिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना गर्दानों के एतबार से भी टिप्स बताऊंगा, ताकि आपको गर्दाने किस तरह आसानी से आप याद कर सकती हैं और आप उन गर्दानों को कैसे लेकर चल सकते हैं। ठीक हो गया जी इंशाल्लाह? तो अभी एक सफ़ा हो गया, इसको आप ध्यान नशीन कीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और लिख कर भेजना चाहें तो लिख कर भेज दीजिए, मैं इंशाल्लाह देखकर जवाब दे सकता हूँ। ठीक हो गया? दुआ में आप रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।